Hello everyone, I hope all of you are fine at home during this pandemic period. The situation are becoming worse right now, so you cannot tell that when we are able to conduct the physical classes. So আমি এতিয়াও predict কৰিব নোৱাৰো কেতিয়ালৈকে আমি ক্লাছ কৰিব পাৰিম physical class. So you guys try to attend the class regular base. Online class toke অকমান তোমালোকে just regular base কৰিব try কৰিবা. I have seen that on first day you guys have so much energy, so much motivated to learn something. You guys are excited, but after the fourth lecture or third lecture, I didn't get so much response from you guys. তোমালোকৰ পৰা হিমালখিনি ৰেসপন্স পোৱা নাই after that class. First class ত যিমান আছিল মই verbally কৈ দিছো फर्स्ट क्लास में तुम लोगों का जो था स्टूडेंट अप्रॉक्स 140 and above student have watched my videos. Then after what happened to you, I don't know what's wrong. क्या हो गया? वो जो साइकिल है उसमें आ गया 112, थर्ड में आ गया 108, अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें आ गया 84. सो वहाँ मतलब 84 स्टूडेंट नहीं देखा, एक दो स्टूडेंट 2-3 बार देखा है. दैट्स व्हाई द व्यूअर्स इज लाइक दैट. यूट्यूब में जो आता है वो भी हम चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं. जो होमवर्क दिया था वो भी मतलब मैक्सिमम ने सबमिट नहीं किया. कितना सारा बच्चे ने सबमिट किया? अप्रॉक्स 20 to 25 स्टूडेंट हैड सबमिटेड. बट व्हाट अबाउट द अदर्स? फ्रॉम द फर्स्ट यू वर नॉट सीरियस. तो एতিয়াर पर যদি सीरियस নহয় পিছলৈ কি হ'ব? এতিয়া उड़ी ना থাকিবা. यू डोंट स्टार्ट फ्लाइंग दैट अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं खुद का सब कुछ कर सकता हूँ. आई कैन डिसाइड माई सेल्फ, मैं खुद से ही डिसीजन ले सकता हूँ. ऐसा नहीं, अभी स्कूल के जैसा ही पढ़ो. जो टीचर तुम्हें स्कूल में जब बोलते थे, स्कूल जेतिया কৈছিলে তোমালোকৰ টিচাৰবোৰে যে এলেকে কৰিবা এলেকে কৰিবা এলেকে কৰিব লাগিব, আজি এইটো কলেজ স্কুল আহিছা, স্কুল এইটো স্কুলে হয়, ক্লাছ 12 টো কোনো কলেজ নহয়. Maybe you are admitting to a junior college. College word to থাকিব পাৰে, but it is not a college. 12th to সদায় higher secondary school হয়. So স্কুলৰ যেটো ফ্লো আছিল, that sufficient. সেইখিনি ফ্লোত তুমি তো কাম কৰি যাচোন, you will really improve. তুমি যিমান গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টে সবকে কৈছো দে, যোনে যিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছিলা, improve by yourself, compete with yourself, never compete with others. এইটো বস্তুটো সদায় মনত ৰাখিবা. লাইফৰ এটা ফাণ্ডা হয়, কেতিয়াও বেলেগৰ লগত মানে কম্পেয়াৰ নকৰিবা. অমুকে অমুকটা কৰিলে, এইটো কৰিলে, অমুকে সেইটো কৰিলে, এইটো বস্তুৰ লগত কম্পেয়াर न करिबा. कभी किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करना. खुद से कंपेयर करो कि मैं पहले था क्या, अब मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ. खुद को इंप्रूव करो, इंप्रूव योरसेल्फ. सो डेफिनेटली यू विल गेट इंप्रूव, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट. क्लास 10 में सपोज तुम्हारा फॉर एग्जांपल क्लास 10 में तुम्हारा 80%, try to convert it to 90 in class 12 and try to get a seat in whatever you want. तुम्हें जो चाहिए, मतलब एक कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए कोचिंग में लिया हो. मैक्सिमम स्टूडेंट आर टेक कोचिंग सेक्शन टू क्रैक ए कम्पिटिटिव एग्जाम एज लाइक नीट या जेई, कोई भी हो. तो उसके हिसाब से पढ़ाई करो. ये तो बहुत ही मतलब क्लास 10 में तुम लोग थोड़ा बहुत टाइम मिल गया. तुम्हारा सेशन पहले से आगे तो मतलब सेवा का जो होता है, सेवा का बच्चा जो हमारे एशियन एजुकेशन काउंसिल में होता है सिस्टम, क्लास 11 का लगभग मार्च-अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाता. अभी थोड़ा मतलब टाइम भी मिल जाएगा, थोड़ा मतलब एक्सटेंड कर देगा शायद. तो देखेंगे मार्च में नहीं हो सकता है, मे बी मई में हो सकता है. नेक्स्ट 2021 11th का मोस्ट प्रोबेबली कुछ चेंजेस होगा. 12 का भी कुछ चेंजेस होगा. सो यू गाइस हैव time to study and take guidance from your teacher. मुझे भी पूछ सकते हो किसी डाउट से, क्या कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए, सर एग्जाम की तैयारी करना है, किससे बुक लूँ, क्या पढ़ाई करूँ, कैसे कैसे पढ़ाई करूँ. एक दो बच्चे हैं जो लोगों ने ऑलरेडी मुझे कांटेक्ट किया हुआ है. किसी वाले कांटेक्ट करी সুধিছেও সা কেলেকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, কেলেকে কি কৰিব লাগে. সো এটা টাৰ্গেট এটা বনাই লৈ লাহে লাহে কৰি থাকা আৰু. So initially তোমালোকক লগ পাইছো and it's in virtual medium. That's why we are not studying very much. So यहाँ पर हम इतना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि
I don't know whether you guys are comfortable in virtual medium or not. यहाँ जो वर्चुअल कम्युनिकेशन हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है. I didn't able to watch you. तुम लोग को देख नहीं पा रहा हूँ. I cannot even see your faces, see your expression. On seeing your expression, I can say that you understood or not. टीचर लोगों को पता चल जाता है, जो क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं तो पीछे या आगे जो बच्चे मतलब बैठे रहते हैं ना, उसको फेस देख के ही पता चलता है कि इसको समझ में आ गया या नहीं आया. सो यहाँ तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा दिक्कत है. इफ़ यू गाइज कोऑपरेट विद अस देन वी कैन easily conduct this type of session or this type of classes. Hope you guys understood what I have talked. Okay. So हम थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक के बारे में और कुछ सीख लेते हैं. जो कुछ सीखा था by completing square by factorization to solve the solution of quadratic equation. Now in today's class we will discuss another method of solving the quadratic equation. Again I am telling you that you got this all thing in class 10, although we are repeating. So এনেকুৱা নাভাবিবা যে আমি পঢ়োৱা নাই, কিয় কৰি আছোঁ এতিয়া, জাষ্ট এইটো ৰিভাইজ কৰি লোৱাচোন. দেন উই উইল ইনফৰ্ম নেক্সট উইক আই এম গোয়িং টু টেক দিছ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন টু চাম এডভান্স লেভেল, অলপ হাই লেভেলত লৈ যামগৈ. আজিয়ে লাষ্ট আৰু ক'বলৈ গ'লে তোমালোকৰ বেছিক যিটো ক্লাছ 10 আছিলে, তাৰপিছত অকণমান হাই লেভেল কুৱেশ্যনছ আমি ডিছকাছ কৰিম. দেন ইউ উইল বি এবল টু ইজিলি এবল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড. চ' এই মতলব কিছুমানৰ চব জানা, চব পাৰি আহিছা, তোমালোকে আকৌ এনেকুৱা হৈ গৈছে ব'ৰ কৰি আছে ছাৰে. सर तो इतना ही बोरिंग है, सर ने पूरा क्लास 10 का ही पढ़ा रहा है, अभी तो हम 11th में आ चुके हैं, सो 11th का पढ़ाना चाहिए, थोड़ा नया नया सीखना चाहिए. तो क्या है, सब बच्चे का मतलब एक तरह का नहीं होता. जो 10th में हो गया, 10th एग्जाम तो लगभग 3-4 महीने हो गए हैं, तो पढ़ाई नहीं हो रहा है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिडंट स्टडी ड्यूरिंग दैट गैप. ये जो गैप है क्लास 11th और तुम्हारा 10th के बीच में, आफ्टर द 10th लगभग फरवरी में ख़त्म हो चुके हैं तुम लोगों का. मैक्सिमम ऑफ यू आर फ्रॉम सेवा, सो सेवा का तो ख़त्म ही हो चुके थे विद इन द फरवरी. सो उन लोगों को लिए क्या है, गैप हो गया थोड़ा, सबका नहीं, किसी ने तो मतलब सेट्स का भी कर लिया. मुझे कल क्वेश्चन भी भेजा था एक, वो सेट्स का क्वेश्चन 1.3 अप टू 1.3 कर लिया. he sent me the questions answer, he solved the numerical which he sent me through his WhatsApp. It's very good sign that individually you are doing by yourself. So সবে কৰাতে লাগে যদি মন আছে. সেটস ইজ ইউ গট ইন ক্লাস 10, trigonometry paisa maximum বস্তু. আৰু those guys, I am telling to those guys who have advanced maths যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টৰ আছিলে, they have got approximately class 11th का जितना टॉपिक है they already get, not the 100%. So those guys can revise or start practicing the NCERT book only. Then we will do the to further extent. আৰু যোনবোৰ নাই সিহঁতৰ টেনশ্যন নল'ব, মই আছোঁ, শিকাম আমি ইয়াতে ইন ডিটেইলছ, পূৰা বেছিকৰ পৰা চব ষ্টাৰ্ট কৰি শিকাম. অ'কে, ইমানো লেকচাৰ মাৰি লাভ নাই, পিছত কৈ থাকিবা নাই ছাৰে অকল লেকচাৰে মাৰি থাকে. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम देखेंगे अभी. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो लास्ट क्लास में जब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किया थे, वो जो जनरल इक्वेशन था, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म था वो क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोमा a नॉट इक्वल टू 0. ये था हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. तो इससे हम जो रूट निकाले थे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, रूट या सोल्यूशन निकाले थे, तो x का क्या आया था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. इसको क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मूला भी बोलते हैं, फॉर्मूला ऑफ दिस.
इफ योर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बुलिও কয়। क्वाड्रेटिक माने অসমীয়া যোনবোৰ আছিল क्वाड्रेटिकটো কি আছিল দ্বিঘাত সমীকৰণ। ओके सो ইয়াৰ সাধাৰণ যেটো সমীকৰণ আছিল হেতু আছিল ax square plus bx plus c। what is the general form of equation, that is ax square plus bx plus c। আৰু যেটো क्वाड्रेटिक फॉर्मूला আছিল দ্বিঘাত যেটো फॉर्मूला হয় দ্বিঘাত সংজ্ঞা বা কি, that x equal to this minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a। so you got the formula। अभी यहाँ पर फॉर्मूला से हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं डायरेक्ट यूजिंग फार्मूला। सो फार्मूला तो याद रहेगा सबका, क्लास 10 में भी मिल चुका है ऑलरेडी, यू गाइस गॉट द फार्मूला। सो क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर minus 5x plus 6 equal to 0। find the value of x by using quadratic formula। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ x निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी आई डिड नॉट राइट द x ही निकालना है क्योंकि यहाँ पर अननोन x ही है। चेक कर लो क्वेश्चन एक बार। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2x स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर। सो हियर मैं थोड़ा लिख देता हूँ a क्या है, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन a इक्वल टू 2, b equal to minus 5 and c equal to 6। therefore by formula x equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a। अभी इसमें वैल्यू पुट कर दो, करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है b का क्या है -5, सो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए इंटू सी, ए इज व्हाट 2 एंड सी इज 6, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए क्या है तुम्हारा 2 है। सो 2, आई थिंक यू गाइस गॉट इट। कंपेयर कर लिया हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए बी का वैल्यू लिख लिया। नहीं लिखने में डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो बाद में, अभी थोड़ा बहुत सीख लो ऐसे। सो माइनस ऑफ -5 इसका हो जाएगा प्लस 25 माइनस 4 6 जा 4 2 जा 8, 8 6 जा कितना होता है, आई थिंक यू गाइस नो इट। 8 6 जा 48 डिवाइडेड बाय 4, 5 प्लस माइनस यहाँ पर आ गया 25 माइनस 48 कितना हो जाएगा, वो भी नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4। यही रिजल्ट है, नेगेटिव मतलब इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, वो तो कॉम्प्लेक्स में थोड़ा बहुत सीख लेंगे। सो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, x का 2 वैल्यू आ जाएगा, बीच में प्लस माइनस है तो वैल्यू विल बी लाइक दिस वन, x इक्वल टू 5 प्लस 1 को प्लस ले लो -23 बाय 4 कॉमा 5 माइनस -23 बाय 4। यही हो गया हमारा x का सोल्यूशन। आई थिंक यू गाइस गॉट इट। बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं QF लिख दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सब तुम लोगों का क्लास 11 में नहीं आएगा, क्लास 11 का एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो बच्चे हो ना सब भूल गए हैं क्या क्या था क्वाड्रेटिक में, क्या इक्वेशन था।
सो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करोगी तो डायरेक्टली आई कैन राइट नाउ x माइनस 3 प्लस माइनस, देखो डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ, 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए का 1 है सी का 1 है, सो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1, सो यू गॉट इट। सो माइनस 3 प्लस माइनस क्या हो गया 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, सो योर रिजल्ट बिकमिंग माइनस 3 प्लस माइनस 9 minus 4 5 divided by 2. So this is the value of x. Therefore x equal to minus 3 plus root 5 by 2 comma minus 3 minus root 5 by 2. So ये हो गया x का वैल्यू। So directly you can solve like this way. So अभी एक important चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके ऊपर ही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में x का क्या आता है, ax स्क्वायर इसका सोल्यूशन होता है, bx प्लस सी इक्वल टू 0 का सोल्यूशन में होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो रूट के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, आई नो यू गाइस नो इट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ए कैपिटल डी से सिंबलाइज किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो एक्स का जो रूट है उसका जो ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से क्या होगा, वेरी करेगा। सपोज डी इज ग्रेटर देन 0 तो रूट आर रियल, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसके हिसाब से एक दो कंडीशंस है, व्हेन इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। रूट तो पता ही है सबको, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट जो 10th में मिला था वही डिस्कस करूंगा, बाद में थोड़ा बहुत और है हम लोगों के लिए, जो जेई एक्सपीरियंट है उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत और है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक वाला डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स डिपेंडेंट ऑन द डिस्क्रिमिनेंट। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 होने से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 होने से, यहाँ देखो इसके रूट के अंदर 0 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, द रूट्स आर real and distinct. Roots are real and distinct. If d less than 0, लेस देन होने से क्या हो जाएगा, 2 या 3 कंडीशन हो सकता है, एक d लेस देन 0, एक d ग्रेटर देन 0 एंड एक हो सकता है d इक्वल टू 0। सो यहां देखो if d लेस देन 0, रूट्स आर, the roots are imaginary। रूट्स क्या हो जाएगा, अब इमेजिनरी हो जाएगा, रियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो गया, लेस देन 0 मीन्स व्हाट, निगेटिव। रूट ओवर निगेटिव क्या होता है, हमेशा इमेजिनरी होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करेंगे, उसको ही कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जो निगेटिव आता है, रियल में नहीं होता। रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी पे यहाँ पर भी एक कंडीशन आएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। जो इमेजिनरी रूट होता है वो कंजुगेट कफ होता है। सो इफ d is greater than 0,
sorry, not greater than, equal to 0, the roots are, अब तो रियल होगा ही होगा, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पुट कर सकते हो 0, 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -b/2a रह जाएगा। ओनली इट्स डिपेंड अपन द b एंड a, b एंड a के ऊपर ही डिपेंड करेगा, जो कांस्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो वो तो सेम ही हो जाएगा, एक वैल्यू ही आ जाएगा 2 बार -b/2a। यहाँ 0 पुट कर दो तो इफ दिस टर्म बिकम 0, ओनली रिमेनिंग टर्म इज -b/2a, सो आवर रूट विल बी -b/2a। सो यहाँ तक तुम लोगों को मिल चुका है। आई थिंक यू गाइज गॉट अप टू दिस। सो इससे आगे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इसका क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। तो रूट्स क्या होगा, सपोज यहाँ तुम्हें बोलने दे दिया 2x² + 3x + 6 = 0। चेक और टेल द or write the nature of the root of quadratic equation given by this 2x² + 3x + 6। इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका प्रॉपर्टी निकालो। प्रॉपर्टी मतलब किसका प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ द रूट, रूट का प्रॉपर्टी निकालो। रूट कैसे होगा, नेचर ऑफ द रूट। सो इसका नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी क्या होता है, b² - 4ac। व्हाट इज द b, वैल्यू ऑफ b देख लो एक बार, 3 है, 3² - 4 × a का है 2, c का है 6, 9 माइनस क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 6 48, इट इज -39 विच इज लेस देन 0। सो roots are what, roots are imaginary। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा सवाल था। ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकता है रूट्स निकालने। if roots are equal, kx² + 2x + 1 = 0, then find k। so if roots are equal, kx² roots are equal of QE quadratic equation this, then find k। क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, रूट्स आर इक्वल गिवन इन क्वेश्चन। रूट्स क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है। सो हमें क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। रूट्स इक्वल मीन्स d = 0 विद इन ब्रैकेट एस रूट्स आर इक्वल। सो फर्स्ट कंडीशन हमने बता दिया, d = क्या कर दिया, 0 कर दिया। वाई, बिकॉज रूट्स आर इक्वल, इट्स गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल। सो d मीन्स b² - 4ac = 0। यहाँ पर हमारा b क्या हो जाएगा, 2² - 4 × a मतलब k आता है, इंटू c मतलब 1 = 0। सो क्या आ गया, 4 - 4k = 0। यहाँ से आ गया 4k = 4, that implies k = 1। सो k का वैल्यू हमारा क्या निकाल गया, 1। दिस टाइप क्वेश्चन में भी आस्क्ड এনেকুৱা क्वेश्चन অকমান ট্ৰিকি क्वेश्चन দিব পাৰে। এনেকুৱা অলৰেডি কৰি আহিছা তোমালোকে, you guys have done already this type of questions। सो तुम्हारा मतलब जो 10th लेवल तक था ये था, और एक भी था। सो हाउ वी कैन राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ज़्यादा सिखाएंगे तो यू गाइज मे बी गेट बोर्ड, तो बोर हो पड़ा। सो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो रूट्स दिया हुआ तो अल्फ़ा बीटा रूट्स, उसके जो है आर्डिशम का 1-2 जो क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे हम। सो यू गाइज ऑल्सो सी योर बुक्स
तो आर डी शर्मा जो जिसके जिसके पास है वो देख सकते हैं. सो ऐसे सपोज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसका इक्वेशन कैसे होगा? इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज द रूट. एक हो गया ये और एक आ गया सपोज 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा आर द रूट्स. तब कैसे निकालेंगे? अल्फा बीटा दिया है, 1 बाय इसका निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस टाइप ऑफ देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में था नहीं लेकिन आर डी शर्मा में है. जो क्लास 10 में आर डी शर्मा फॉलो किया है उन लोगों को पता चलेगा. ओके, जो नहीं भी किया हो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.